Dr. Prince Parikh's Newborn and Child Care Clinic presents Doctor Online. সহযোগী নিবেদক আস্থা হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ রোড, ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কাওয়াখালী, শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়েন্স আই হসপিটাল। আমাদের ঠিকানা বিশাল সিনেমা হলের পেছনে, সেকেন্ড মাইল, সেবক রোড। শিলিগুড়ি হেল্পলাইন নাম্বার 9733300090। Maya Shanal Clinic and Nursing Home and Maya Diagnostics, Nojul Sharoni near Pakurtala More, Shiliguri. New Life Fertility Center, second floor, Homeland Business Center, third mile, opposite Mahindra Showroom, Shebak Road, Shiliguri. নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এখনকার অনুষ্ঠান ডক্টর প্রিন্স পারেখ নিউবর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিকের সৌজন্যে অনুষ্ঠান দেখছেন ডক্টর অনলাইন। আজ যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ ডক্টর অনলাইনে প্রতিদিনই কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমরা ডিসকাস করি। থাকবেন আপনারা সাথে 0353246194 এই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। এছাড়াও সিসিএন বিনোদনের ফেসবুক পেজে আমরা আছি, সেখানে গিয়ে সরাসরি আপনারা প্রশ্ন পোস্ট করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমরা সেখান থেকে আজকের যিনি আমাদের রয়েছেন চিকিৎসক, সাথে তার কথা আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবেন, তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন আপনাদের সমস্যা নিয়ে সিসিএন বিনোদনের ফেসবুক পেজে, এবং সেখানে সেই প্রশ্ন করলে সরাসরি ডাক্তারবাবু উত্তর দেবেন। ডাক্তার পীयूष कुमार पटवारी রয়েছেন আজ, কনসালটেন্ট ইউরো সার্জন, एंडो यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपको। आज का विषय है सर थोड़ी जो किडनी के ऊपर, और किडनी का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ऐसा कुछ। पहले शुरू करें किडनी के समस्या से। किडनी का जो फंक्शन है वो थोड़ा बता दीजिए, क्या है, क्या होता है किडनी का फंक्शन। किडनी का काम ब्लड को क्लीन करके उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर करना होता है। ये किडनी का मुख्य फंक्शन है। उसके साथ में किडनी का फंक्शन होता है रक्त कोशिकाओं के लिए हार्मोन देना, जिससे हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ता है। यही दो किडनी के मुख्य काम है। কিডনি কা দো মুখ্য কাম হয়। কিডনি কাজ হলো আমাদের শরীরে যত টক্সিন আছে সেই টক্সিন বা বর্জ্যকে একেবারেই বের করে দেয়া, আমাদের শরীরের যে ব্যালেন্স সেই ব্যালেন্সটাকে ঠিক করে রাখা। কারণ কিডনি আমাদের শরীরে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা অবলম্বন করে। কিডনি কোনো কারণে খারাপ হলে আমাদের কিন্তু সারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্যা তৈরি হয়। কিডনি খারাপ আছে কিনা বা কিডনি আপনার ভালো আছে কিনা সেটি কি করে বুঝবেন স্যার, कैसे पता जाए कि हमारा किडनी ठीक है कि नहीं। कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन, सोडियम पोटेशियम, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिनको मेजर करके हम जान सकते हैं कि हमारी किडनी का फंक्शन ठीक है कि नहीं है। अगर नॉर्मल लेवल में है तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ, हमारी दोनों किडनियाँ जो है वो ऑप्टिमम काम कर रही हैं। भगवान ने हमें 2 किडनी दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक कुशन रहता है, ताकि थोड़ा सा किडनी में प्रॉब्लम भी आने से हमारा बॉडी उसको मैनेज कर लेता है। इस कारण से बहुत समय हम लोग देखते हैं कि हमारे परिजन या किसी के लिए हम लोग किडनी दान भी कर सकते हैं, किडनी डोनेशन भी करते हैं, क्योंकि शरीर के लिए एक किडनी भी मतलब शरीर के लिए काम कर सकते हैं, और इससे हम अपना जीवन
सुखी से या फिर अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। একেবারে অনেক সময় আমরা কিডনির সমস্যায় অনেকে আমরা বলি আমাদের পিঠে ব্যথা হচ্ছে বা কোমরের নিচে, কারণ কিডনির স্থান তো ওই জায়গাটাতেই, এবং কিডনি একেবারেই ছোট্ট, কিন্তু এর সাইজটা অনেকটাই ছোট, যেটি আপনারা অনেকেই জানেন, এবং সেখানে সমস্যা তৈরি হলে সারা শরীরের সমস্যা, এবং কিডনির এই সমস্যাগুলোর জন্য যাতে তৈরি না হয় তার অন্যতম একটা সমস্যা, সেটি হলো কিডনি স্টোন। কিডনি স্টোন নানা রকম হয়, কিডনি স্টোন কেন হয় এই বিষয়ে আলোচনা করব সরাসরি। এই মুহূর্তে আপনারা 0353246192 এই नंबर फोन करते पारें। किडनी स्टोन के बारे में जानना चाहता हूँ, क्यों होता है, कोई कारण है, किस वजह से ये किडनी स्टोन होता है? किडनी का जो मेन काम है ब्लड को प्यूरिफाई करके उसमें से जो टॉक्सिन्स हैं और जो गंदे पदार्थ हैं उसको बाहर निकाल के यूरिन में मिला के भेजना। जब बॉडी में ये पदार्थ ज़्यादा हो जाते हैं या फिर पानी की मात्रा कम हो जाती है, जब जो यूरिन बनता है इसमें ये पदार्थ के छोटे छोटे कण रहते हैं, और अगर मान लीजिए हम कम पानी पीते हैं या कोई और कारण से वो पदार्थ क्या होते हैं किडनी में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, एक साथ वो बढ़ते 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 स्टोन का रूप ले लेते हैं। इसके बहुत सारे कारण भी होते हैं, जैसे कि कम पानी पीना या फिर ऐसा डाइट खाना जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा हो या यूरिक एसिड ज़्यादा हो, जैसे ज़्यादा प्रोटीन खाना या फिर चॉकलेट खाना या फिर जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है। ज़्यादा प्रोटीन खाना क्या खतरनाक हो सकता है? ज़्यादा प्रोटीन खाने से अगर आपकी पानी कम अगर हम पीते हैं तो ज़्यादा प्रोटीन खाना खतरनाक हो सकता है हमारी किडनी के लिए। ये एक स्टोन फॉर्मेशन के लिए एक प्रिकर्सर होता है, जिसके कारण से जो यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी में बनता है वो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण, तो वो यूरिक एसिड जाके हमारी किडनी में जाके जमा हो सकता है, उसके कारण से स्टोन बन सकते हैं। डेली जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, सोचिए कि 70 kg कोई किसी का वेट है तो 70 ग्राम खाना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर कोई 70 ग्राम से ज़्यादा कुछ खा लिया तो क्या हो सकता है? देखिए, बॉडी में हमारे किडनी में भी ये स्टोन नहीं बनने के लिए कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जिसके जो स्टोन बनने के प्रक्रिया को स्लो करते हैं या फिर उनको रोकते हैं। तो इसका जो बैलेंस है स्टोन नहीं बनने की प्रक्रिया और स्टोन बनने वाले फैक्टर्स, इसका जो बैलेंस है यही मेन है। अगर स्टोन नहीं बनने वाली जो प्रक्रिया है बॉडी में, तो अगर वो काम कर रही है सही से तो स्टोन नहीं बनते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये प्रक्रिया बढ़ती है, जैसे कि विटामिन सी जो हम लोग खाते हैं, अगर हम लोग एडिक्वेट मात्रा में खाएं तो फिर उससे क्या होता है, सिट्रेट के कारण से स्टोन फॉर्मेशन कम होता है। अगर हम 2 ग्राम से कम अगर विटामिन सी खा रहे हैं दिन में तो ये हमें स्टोन बनने में प्रोटेक्शन देता है। विटामिन सी खाने से? हाँ, अगर हम लोग लिमिट में खा रहे हैं, अगर हम लोग ओवर लिमिट कर रहे हैं तो वो स्टोन बनने का भी एक कारण होता है। अगर सर आजकल तो जमाना है जिम जाने का, ऐसा कुछ वहाँ पर कुछ पाउडर या कुछ वो प्रोटीन के हिसाब से खा लेते हैं, तो इसके हिसाब से प्रोटीन क्या ज़्यादा नहीं हो पाएंगे शरीर में? देखिए, हर चीज का एक्सेस खराब होता है बॉडी के लिए। तो अगर हम एक लिमिटेड बैलेंस डाइट खाते हैं, मेन इसमें टारगेट रहता है बैलेंस डाइट, जिसमें हर तरह का हमें विटामिन मिनरल्स और सब कुछ खाना है। अगर हम कोई भी चीज का एक्सेस करते हैं तो एक्सेस खराब होता है, एक्सेस हमें नहीं करना है। अगर पेट में दर्द होता है या कोई सूजन, तो इसका मतलब क्या है? किडनी खराब हो सकता है या कुछ किडनी पथरी का संभावना है? किडनी पथरी का एक लक्षण ये भी होता है कि पेट में दर्द होता है। वो दर्द हमारे पीठ के दोनों साइड में हो सकता है या फिर पेट के निचले हिस्से में हो सकता है, बीच की तरफ हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि किडनी में पथरी कहाँ पे है, वो पथरी के लोकेशन के हिसाब से दर्द होता है। हाँ, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो बेहतर रहता है कि हम उसे इवेलुएट कर लें, कोई इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि हमें पता चल जाए कि उसका कारण क्या है, वो किडनी के कारण है या कोई और कारण से है। और किडनी के कारण है तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्टोन अगर है तो कितना बड़ा है, कितना साइज कितना बड़ा है, और वो किडनी में क्या प्रॉब्लम कर रहा है, किडनी में सूजन तो नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ है तो हमें उसका इलाज करना पड़ता है। यूरिन में कभी कभी खून निकलते हैं किसी वजह से, इसका मतलब क्या है कि किडनी में स्टोन हो रहा है इसी वजह से या दूसरे कुछ कोई कारण है? पेशाब में खून आने के बहुत सारे कारण हैं। हम यूजुअली बंगाल में जो देखते हैं तो हम इस एरिया में हम लोग देखते हैं तो स्टोन कॉमन है, या इंडिया के और भी दूसरे भाग में हम लोग ये देखते हैं कि अगर पेशाब में खून आ रहा है तो ये कैंसर का सबसे पहला लक्षण हम लोग मानते हैं। कैंसर जैसे कि पेशाब थैली का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, किडनी का कैंसर, ये भयावह बीमारी हो सकती है। इसीलिए पेशाब में खून आने को हम लोग कभी नॉर्मल नहीं मानते, उसको हम लोग हमेशा इवेलुएट करके देखते हैं कि क्या है। कुछ
इतनी भयावह बीमारी नहीं होती, जैसे सिर्फ सिंपल पेशाब का इन्फेक्शन के कारण भी पेशाब में खून आ सकता है या फिर पत्थरी के कारण भी पेशाब में खून आ सकता है, जो इतनी भयावह नहीं है, जिसका इलाज भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए पेशाब में कभी भी खून आता है, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसका हमेशा यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इसका इलाज कराना है, ताकि इसको जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जा सके। यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद क्या उसका जांच कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस कैसे होता है? घर बैठे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि मेरे अंदर है कि नहीं स्टोन, कैसे आप लोग करते हैं? अगर स्टोन के हम लोग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोन कहाँ पे है, स्टोन है कि नहीं है पहली बात, फिर स्टोन है तो कहाँ पे है, और कहाँ पे है तो कितने स्टोन हैं, हाँ। और कितने बड़े साइज है, और वो क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ। इन सब के लिए एक बहुत ही सिंपल जांच होती है, अल्ट्रासाउंड जिसको कहते हैं। अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई रेडिएशन भी नहीं होता, कोई दर्द भी नहीं होता। इसमें हम करा के एक आइडिया ले सकते हैं कि इसमें हमारे शरीर में, पेट में, किडनी में या यूरेटर में या ब्लैडर में या प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। कितना छोटा पत्थर होता है, कितना बड़ा होता है? देखिए, अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी अगर हम देखें तो यूजुअली 5 mm से छोटे पत्थर उसमें दिख पाना मुश्किल होता है, बट हम देखते हैं कि हाँ 2 mm, 3 mm, 4 mm के भी पत्थर दिखते हैं, ऐसा नहीं है। और पत्थर जब बड़े होते हैं तो उसको स्टैगहॉर्न कैलकुलस कहते हैं, वो पूरी किडनी का ही आकार ले लेते हैं। वो कितना बड़ा हो जाता है, फिर उसको वो 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो ऐसे केस में वो क्या होता है कि वो किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। এই যে কিডনিতে স্টোন যাদের রয়েছে এই সময়টাতে দেখবেন আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না, কারণ জল খাওয়ার একটা সমস্যার উপর কিডনির সমস্যা নির্ভর করে নাকি? কারণ প্রচুর জল খেতে হয় আমরা জানি সারা শরীরের জন্য, এবং কতটা পরিমাণ জল খাবেন সেটি এক একজনের সমস্যা বুঝে সেইভাবে জল খেতে হয়। একজন সাধারণ মানুষ সারাদিনে 2.5 থেকে 3 লিটার জল আমরা নিয়মিত খেতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিডনির যদি সমস্যা থাকে তাহলে কি করে বুঝবেন? জল খাওয়ার পরিমাণ হয়তো আপনার নিয়মিত ঠিক হচ্ছে না, জল কতটা খাচ্ছেন আমরা বুঝতে পারছি না, হয়তো কেউ অধিক পরিমাণে জল পান করছেন, সেই জল কিন্তু আমাদের শরীরে প্রয়োজনে লাগছে না, কারণ অতিরিক্ত জল আমাদের শরীর কিন্তু সেটা ত্যাগ করে। তো এটা একটু শুনি, জলের অ্যাকচুয়ালি পরিমাণ কত আমাদের শরীরের জন্য? एक हेल्दी लिविंग के लिए हमको मिनिमम 2 लीटर्स वाटर पर डे खाने से बेहतर रहता है। मिनिमम 2 लीटर खाने से हमारा शरीर अराउंड 1.5 लीटर के आसपास यूरिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक एडिक्वेट अमाउंट है, जिसके कारण से आप स्टोन बनने का चांसेस भी कम हो जाता है, और जो भी टॉक्सिन्स जो ब्लड में रहते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। तो अराउंड 2 लीटर्स अगर पर डे खा रहे हैं तो वो एडिक्वेट है हमारी बॉडी के लिए। पर हाँ, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे आप कुकिंग हो गया, या फिर कोई गर्मी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या जैसे पुलिसमैन हो गए, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें हमारा पानी पीने का क्वांटिटी बढ़ जाता है, बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे इनसेंसिबल लॉस हो रहे होते हैं स्वेटिंग के कारण से, जिससे कारण यूरिन आउटपुट, यूरिन कम हो जाता है। तो निजी ऐसे आम भाषा में अगर हम बोलें, अगर आपके पेशाब का रंग हल्का, एकदम हल्का पीला या सफ़ेद है, तो मतलब आपके बॉडी में जल पर्याप्त मात्रा में है, पानी के आपको कमी नहीं हो रही है। अगर आपका पेशाब डार्क येलो इस तरह का होता है, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपकी बॉडी में थोड़े पानी की कमी है, तो बेहतर रहता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी इनटेक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फिर भी। তাহলে ওই জল খাওয়ার ওই বিষয়টা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কিডনিকে ঠিক রাখতে হলে ওই জায়গাটা আমাদের ঠিক রাখতে হবে, জল খাওয়ার পরিমাণটা, যেটা আমাদের সাথে ডাক্তার পীযূষ যেটি বললেন আমাদেরকে, যে জলের পরিমাণটি কত নিয়ম করে জল খেতে হবে, সুতরাং এটি ভুল করলে চলবে না। একটা কথা বলি, এই যে কিডনির সমস্যা, এটা ডায়াগনোসিসের পর কিভাবে তার ট্রিটমেন্ট হয় সেটা একটু শুনবো, डायग्नोसिस के बाद। अगर पत्थरी का डायग्नोसिस हो गया है तो उसके बाद हमें देखना होता है, अगर पत्थरी छोटी है तो हम उसको सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। जैसे हम हिस्ट्री में लेते हैं कि पेशेंट कितना पानी पी रहा है, तो हम उसे एडवाइस करते हैं 8 से 10 ग्लास पानी या 8 से 12 ग्लास पानी प्रत्येक दिन पीना है। अच्छा। और उसके साथ में अल्कोहल नहीं पीना है, चाय कॉफी का। एक फोन लेंगे, रुकते हैं थोड़ा। नमस्कार, কে আছেন? নমস্কার, আমি বাপি দাস বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন বাপি, প্রশ্ন কি? বলছিলাম আমার ডাবগ্রামে বাড়ি। হ্যাঁ, শিলিগুড়িতে। আচ্ছা।
বললাম আমার গত বছরে মানে বলছিল ডাক্তারকে দেখিয়েছিলাম, হুম। তো ডান সাইডে কিডনিতে একটা স্টোন ধরা পড়েছিল 3 mm। তো জল খেতাম, এখন তো মানে তখন তো আর ব্যথা আর উঠেনি। ইদানিং এখন দুটো কিডনিতেই ব্যথা করে। কি আমি কি আবার কি ডাক্তারকে সমস্যা মানে ডাক্তারকে দেখাতে পারবো? নিশ্চয়ই দেখাতে পারবেন। এখন দুটো কিডনিতেই ব্যথা করে? দুটো কিডনিতে মানে ব্যথা করে, প্রচুর ব্যথা করে, পেন হয়। দুটো কিডনিতে ব্যথা করে যে আপনি কি করে বুঝলেন? তো সকালবেলা উঠে দেখি মানে প্রচন্ড বাথরুম করতে গিয়ে মানে বাথরুমে জ্বালা ভাব হচ্ছে, তো দুটো কিডনিতে ব্যথা হচ্ছে। স্যার क्या पूछेंगे? जो बाथरूम में जाला हो रहा है, मतलब जलन हो रहा है और ये दर्द हो रहा है, ये एक इन्फेक्शन का एक लक्षण हो सकता है, जिसमें पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई का लक्षण हो सकता है। जो 3 mm स्टोन जो आप बोल रहे हैं, जो 1 साल पहले था, तो हमको एक रिपीट अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ेगा कि ये 3 mm का स्टोन जो था वो बड़ा तो नहीं हो गया है, शायद उसके कारण से हमें दर्द हो रहा हो। और जो आप बोल रहे हैं पहले दाईं साइड की किडनी में था पर दर्द अभी दोनों साइड में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाएं साइड की किडनी में भी एक नया पत्थर बना होगा। तो उसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करके एक बार देखना पड़ेगा कि अब आज की डेट में स्थिति क्या है और उस अनुसार से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाँ, और जो पेशाब में जलन है वो नॉर्मल नहीं है, उसका भी हमको एक बार यूरिन का भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि अगर उसमें इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन का हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। তো ইউরিন তো হলুদ হচ্ছে স্যার, প্রচুর হলুদ হচ্ছে কিন্তু ইউরিনটা। हाँ, यूरिन जैसे येलो कलर जैसे आप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा कम पानी पी रहे हैं जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे। तो मैं उसमें एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा करके पिए और यूरिन के जो कल्चर टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है जो ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है और उसमें कौन सी दवाई दे सकते हैं। फिर हम उस हिसाब से एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे और एक अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि अभी किडनी में स्टोन है कि नहीं है, और स्टोन है तो वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है जिसके कारण आपको पेट में दोनों साइड में व्यथा हो रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग आगे का मैनेजमेंट प्रोसीड करेंगे। 10 गिलास আরেকটা পানি। বিষয় স্যার, আরেকটা বিষয় স্যার, হ্যাঁ বলুন বলুন। বলো আমার কিন্তু সুগার আছে স্যার। हाँ, সুগারের তার থেকে शुगर के मरीज में और भी हम लोग को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि व्यथा हो रहा है और जलन भी हो रहा है, ये जो इन्फेक्शन है, ये इन्फेक्शन छोटा इन्फेक्शन भी बड़ा रूप ले सकता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा कारण है किडनी में भी इन्फेक्शन होने का। इसमें एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस होने का और यूटीआई हो के सिस्टाइटिस और होने का चांस बहुत हाई रहता है। तो इसमें यही एडवाइजेबल रहता है कि आप अपना शुगर एकदम कंट्रोल में रखें और इसका एक स्क्रीनिंग करें कि क्या है और उसका मैनेजमेंट करना भी जरूरी है। इसको आप शुगर के मरीज किडनी में पेन होना, मतलब बैक साइड में पेन होना या पेशाब में जलन होने को लाइटली नहीं लें। बिल्कुल। একবার না দেখা করুন আপনি, অ্যাড্রেস Okay, okay. অ্যাড্রেস বলে দিচ্ছি, সেগুলো শুনবেন একটু। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ আপনাকে। ডাক্তার পীযূষ কুমার পাটোয়ারি, যেখানে নিয়মিত ওপিডি হয়, মিত্রস ক্লিনিক, হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের সন্নিকটে, সেখানে নিয়মিত ক্লিনিক হয়। ডাক্তার নায়ক নার্সিংহোম, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, সেখানে ওনার ওপিডি হয়। প্রতীক মেডিকেল, অপোজিট অফ হাওড়া পেট্রোল পাম্প, সেখানে কিন্তু হিলকাট রোড, শিলিগুড়ি, সেখানে নিয়মিত ওপিডি হয়। যোগাযোগ করবেন। হেল্পলাইন নাম্বার যেটি বলবো গুরুত্বপূর্ণ, 9800030690, 9800030690। এই নাম্বারে আপনারা ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে জানতে পারবেন কোন সময় আপনারা কোন অঞ্চলে দেখাতে চান। অঞ্চল বলতে যেগুলো আমি বললাম, মিত্রস ক্লিনিক, হাকিমপাড়া, ডাক্তার নায়ক নার্সিংহোম, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, এবং প্রতীক মেডিকেল যেটি হাওড়া পেট্রোল পাম্পের অপোজিটে, হিলকাট রোড, শিলিগুড়ি, সেখানে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। 10 गिलास पानी आप बोले, 10 गिलास पानी का मतलब कितना होता है, कितना लीटर होता है? अगर हम अगर कोई छोटा गिलास में पानी पिए तो क्या होगा? देखिए, हम एक ग्लास पानी को एक एवरेज में 200 ml मानते हैं। अगर हम 10 ग्लास पीते तो अराउंड 2 लीटर पानी। अच्छा, 2 लीटर 2 लीटर उसके हिसाब से 10 गिलास। हाँ, एकेबारे। 8 से 10 ग्लास पीने से हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाता है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे माप तो बहुत कुछ आ गए हैं। बोतल के अंदर ये लाइन दिया जाता है, ग्लास के अंदर ऐसा ऐसा दाग दिया जाता है, सब कुछ होता है। तो ये आसान हो गया। और ये बहुत आसान हो गया। इसके बहुत सारे एप्स भी आते हैं जो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपने कितना पानी पिया है। हाँ बिल्कुल। ये हमें लगता है ओवर है, बट एक्चुअल में ये जिनको हेल्प करता है उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है और ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक
अच्छी चीज़ है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। একবার আপনি ফোন করেছিলেন, বললেন না যে সুগার রয়েছে, ব্লাড সুগার থেকে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। আমাদের যেই যে অঙ্গগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার ভিতর কিডনি অন্যতম। চোখ রয়েছে, আমাদের হার্টের সমস্যা আসতে পারে, এই ধরনের সমস্যাগুলো আসতে পারে। সুতরাং যাদের দেখবেন কিডনির সমস্যা রয়েছে একবার সুগারটাও টেস্ট করিয়ে নেবেন। আর সুগার যদি আপনার ধরা পড়ে তাহলে কিডনির যত্নের জন্য আপনাকে স্ক্রিনিং করাতে হবে এবং দেখবেন যে স্ক্রিনিং করে আপনার কিডনির স্বাস্থ্য ঠিক রয়েছে কিনা। এই কিডনি টেস্টের জন্য একটু পরীক্ষা করাতে হয়, সেটা একটু শুনে নিই। किडनी का टेस्ट कैसे किया जाता है, स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है, कोई टेस्ट है उसके? देखिए शुगर के कारण से किडनी में একটু থামি, কেউ আছেন? নমস্কার, কে আছেন? হ্যালো হ্যালো, বলুন। এটা কি প্রথম আলো চ্যানেল থেকে বলছেন আপনি কি? হ্যাঁ বলুন, আমি সিসিএন বিনোদন থেকে বলছি, বলুন প্রশ্ন। ওই যোগাযোগ করব তো আপনার সঙ্গে, তাই। এখন ডাক্তারের অনুষ্ঠান দেখছেন? হ্যাঁ, এখন ডক্টরের অনুষ্ঠান দেখছেন, আপনার প্রশ্ন আছে ডক্টরের কাছে কোনো প্রশ্ন আছে? না এখনো প্রশ্ন নেই, ওই যে মানে আপনি দেখতে থাকুন, ধন্যবাদ। দেখতে থাকুন, ধন্যবাদ। ডাক্তার পীযূষ কুমার পাতওয়ারি রয়েছেন, কনসালটেন্ট ইউরো সার্জন, ইউরোলজিস্ট, ইউরো অনকোলজিস্ট এবং অ্যান্ড্রোলজিস্ট। এবার সুতরাং অনেকেই দেখতে দেখতে হয়তো আপনারা আমাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু যেই অনুষ্ঠানের জন্য আপনার প্রয়োজন সেই অনুষ্ঠান সঠিক সময়ে চোখ রাখুন। আপনি যে অনুষ্ঠানের জন্য ফোন করেছিলেন সেই অনুষ্ঠান কিন্তু প্রতিদিন সকালবেলায় হয়। সুতরাং আরও একবার ফোন করে এই অনুষ্ঠানের পর আপনারা জেনে নিতে পারবেন আপনারা কোন প্রোগ্রামে যোগাযোগ করতে চাইছেন। এরপরে বলি, এই যে পাথর পাওয়া গেল, এই কিডনি পাথরের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেল আপনার কিডনিতে পাথর রয়েছে, আপনি ঘাবড়ে গেলেন, চিকিৎসককে বললেন, কারণ কিডনিতে পাথর শুনলে অনেকে ঘাবড়ে যায়। অনেকে ভাবলেন ছোট পাথর, কিছু হবে না, চিকিৎসকের কাছে গেলেন না, জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে কিনা। এই সমস্ত বিষয়গুলো একটু চিকিৎসকের কাছে জিজ্ঞেস করে নিই। जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें हमें बताते हैं कि किडनी का में पत्थर है, तो पत्थर का हमको देखना होता है साइज़ क्या है, किडनी में वो कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे आपने कहा कभी कभी हमें सिस्ट भी दिखता है, तो अल्ट्रासाउंड में वो सिस्ट का ग्रेडिंग भी हो सकता है कि वो सिस्ट क्या है, कोई बड़ी बीमारी का लक्ष्य का शुरुआत तो नहीं है या फिर ये सिर्फ सिंपल सिस्ट है। तो ये चीज़ अल्ट्रासाउंड से क्लियरली पता चल सकता है। तो अगर यूजुअली 99% लोगों में, 99 तो नहीं मतलब काफ़ी हद तक 90% से ऊपर लोगों में यूजुअली ये सिंपल सिस्ट होता है जिसके लिए कुछ करना नहीं होता है। और जो पत्थर होते हैं उस पत्थर के साइज़ के ऊपर और पत्थर किडनी में क्या कर रहे थे, कभी कभी क्या होता है किडनी के मुंह में जाके एक छोटा पत्थर भी जाके अटक जाता है, जिससे कारण से किडनी में स्वेलिंग होती है, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ऐसे केस में हमको ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है ताकि हम किडनी में और ज़्यादा डैमेज होने से रोक सकें, किडनी में इन्फेक्शन होने से रोक सकें। इसके कारण क्या होता है, जो पत्थर जो उसके किडनी के मुंह में जाके अटक जाता है, उसके कारण से किडनी में जो यूरिन बन रहा है वो ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है, और किडनी में अगर यूरिन ठीक से फ्लो नहीं हो रहा है तो वो एक इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है, जिससे कारण इन्फेक्शन होता है। নমস্কার, কে আছেন? হ্যালো হ্যালো, কে আছেন? নমস্কার, কে বলছেন? হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন কে বলছেন? বলছিলাম আমার নাম গিরিধারী চক্রবর্তী, আমি ফাটাপুকুর থেকে বলছি। হ্যাঁ বলুন গিরিধারী। আমি আপনাদের ওই লাইভ প্রোগ্রাম সিস্টেম বিনোদনে দেখছি। তো আমার একটা সমস্যা আছে, যেটা হলো আমার ওই মানে কিডনির ব্যাক সাইডে খুব ব্যাক পেইন হয়, আচ্ছা, প্রচন্ড পেন। আর রাত্রেবেলা মানে আমাকে মানে আমার বাথরুমে একটা সমস্যা আছে, মানে আমি দিনের বেলা অন্তত 15 বার করে বাথরুমে আমি যাই, আর রাতের বেলা অন্তত পক্ষে মানে মনে করো আমি 11টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি, তারপরে 7টা থেকে 7:30টার মধ্যে আমি ঘুম থেকে উঠে পড়ি, এর মাঝখানে অন্তত আমি 5 থেকে 6 বার আমি বাথরুমে যাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাই সমস্যা না স্যার? হ্যাঁ এটাই সমস্যা, আর একটু ব্যাক পেইন আছে। तो आप जिस समस्या की बात कर रहे हैं इसको एक सिम्टम कॉन्स्टिलेशन के अंदर आता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। इसका एक सबसे कॉमन वो होता है, सबसे पहले जो शुरू होता है वो होता है नॉक्चूरिया, मतलब रात में बार बार पेशाब करना और जिसके कारण नींद बाधित होना। तो ये एक सिम्टम है जिसको हम लोग को इवेलुएट करना है कि वो किस कारण से है। ये प्रोस्टेट बड़ा होने के कारण भी हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट जैसी और कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटिज्म जिसको कहते हैं, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। ये कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शन होने के कारण भी होता है। तो इसके लिए हम लोग को पहले एक बार इवेलुएट करके देखना है कि आपको यूरिन में प्रॉब्लम क्या है, आपके यूरिन का फ्लो ठीक है कि नहीं है, और एक अल्ट्रासाउंड करके प्रोस्टेट का साइज़ भी हमको देखना पड़ेगा कि प्रोस्टेट का साइज़ कितना है।
उसके अनुसार से हमको उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर प्रोस्टेट का साइज़ ठीक है और अगर आपका यूरिन भी ठीक से क्लियर हो रहा है तब तो हम सिर्फ इसको मेडिसिन से यूजुअली ये ठीक हो जाता है। कुछ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है तो हमें एक सिस्टोस्कोपी बोल के भी एक जांच होती है जो करनी पड़ सकती है, और उसमें हमें पता चलता है कि अंदर से कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है कि नहीं है या फिर ब्लैडर नेक हाई है कि नहीं है, तो फिर हमें उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। ধন্যবাদ ওকে, ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ 9800030690 হেল্পলাইন নাম্বার। এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। যেখানে যেখানে ওপিডি হয় ডাক্তার পীয়ূষ কুমার পাটোয়ারির, মিত্রস ক্লিনিক হাকিমপাড়া, ডাক্তার নায়ক নার্সিংহোম সেবক রোড শিলিগুড়ি এবং প্রতীক মেডিকেল অপোজিট অফ হাওড়া পেট্রোল পাম্প হিলকাট রোড শিলিগুড়ি, সেখানে নিয়মিত কিন্তু ওপিডি হয়। যোগাযোগ করতে হবে ওই নাম্বারে 9800030690। এই নাম্বারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। এবারে বলি আপনার ট্রিটমেন্টের জায়গায় ছিলাম, কিভাবে ট্রিটমেন্ট হয়, কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি। ডক্টর প্রিন্স পারেখ নিউ বর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিকের সৌজন্যে অনুষ্ঠান দেখছেন। একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরব এই অনুষ্ঠানে, সঙ্গে থাকুন। আপনার শিশু স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় স্টেট অফ দ্য আর্ট পরিকাঠামোয় ডক্টর প্রিন্স পারেখ নিউ বর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিক। এখানে শিশুদের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা করা হয়। বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর প্রিন্স পারেখ নিয়মিত এখানে শিশুদের চিকিৎসা করেন। সমস্ত রকমের টিকাকরণ এখানে করা হয়ে থাকে। ডক্টর প্রিন্স পারেখ নিউ বর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিক, বিলো ইন্ডিয়ান ব্যাংক, নিয়ার ঋষি ভবন, বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি। আস্থা হসপিটাল। আমাদের পরিষেবায় রয়েছে নিউরোসার্জন, অর্থোপেডিক্স, নেফ্রোলজি, ইএনটি, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি, ডার্মেটোলজি এবং সঙ্গে রয়েছে মেডিসিন। এছাড়াও 24 ঘন্টা এমার্জেন্সি পরিষেবার সুবন্দোবস্তও রয়েছে। আস্থা হসপিটাল, সুস্থ এবং সুন্দর জীবনের আর এক নিশ্চয়তা। মেডিকেল কলেজ রোড, ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কাওয়াখালী, শিলিগুড়ি। আপনাদের দৃষ্টি অমূল্য, এজন্যই আপনাদের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এখন আরো নতুনত্বে আবৃত। আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্যকর চক্ষু পরিষেবার জন্য আমরা নিয়ে এসেছি সম্পূর্ণ শীত তাপ নিয়ন্ত্রিত ওপিডি, বিশ্বসেরা উন্নত মানের ডায়াগনস্টিক্স এবং অতি আধুনিক ডে কেয়ার পরিষেবা। আরো সংক্রমণহীন নিখুঁত সার্জারির জন্য উত্তরবঙ্গের একমাত্র চক্ষু মডুলার অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স। অত্যাধুনিক চিকিৎসার সাথে আপনাদের একমাত্র ভরসা শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়েন্স আই হসপিটাল। আমাদের ঠিকানা বিশাল সিনেমা হলের পেছনে, সেকেন্ড মাইল, সেবক রোড। শিলিগুড়ি হেল্পলাইন নাম্বার 9733300090। মায়া সান্যাল ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম আপনার সঙ্গে আছে গর্ভাবস্থা ও স্ত্রীরোগজনিত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য। এখানে রয়েছে অসুস্থ নবজাত শিশুদের জন্য অত্যাধুনিক এনআইসিইউ। মা ও শিশুর সুরক্ষার জন্য মায়া সান্যাল নার্সিং হোম সর্বদাই আপনার সঙ্গে। রয়েছে অর্থোপেডিক বিভাগ, ট্রমা কেয়ার, 24 ঘন্টা ইমার্জেন্সি পরিষেবা, রক্তে যাবতীয় টেস্ট সহ ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডিজিটাল এক্সরে, ইউএসজি, ডিজিটাল ইসিজি, হল্টার, কালার ডক্টরের সুবিধা রয়েছে মায়া ডায়াগনস্টিকে। রয়েছে মেডিসিন বিভাগ। একই ছাদের নিচে আপনার স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় মায়া সান্যাল ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোম, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি। क्या आप परेशान हैं आपके बैक पेन से, साथ ही साथ जॉइंट पेन, क्या आप नी और हिप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं? कंसल्ट कीजिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संकल्प कुमार से। आर्थ्रोप्लास्टी, आर्थ्रोस्कोपी एंड ट्रॉमा सर्जन। Contact us Hill Point Clinic and Nursing Home, Mallaguri near Hotel Mainak, Hilkat Road, Siliguri. Welcome to New Life Fertility Clinic. At New Life, we ensure parenthood by our services, by our trusted doctors, in a world-class IVF lab, with a high success rate, and at an affordable cost. Contact for appointment.
সাধ্যের মধ্যে মুক্তা মাল্টি স্পেশালিটি নার্সিং হোমে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে জেনারেল এবং ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জারি, গাইনোকোলজি, নিউরোসার্জারি, অর্থোপেডিক সার্জারির ব্যবস্থার পাশাপাশি সদ্যজাত শিশুদের জন্য ইন্টেন্সিভ নিউনেটাল কেয়ার এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য স্পেশাল ডেলিভারি প্যাকেজ রয়েছে মাত্র 23,000 টাকায়। রয়েছে 24x7 অ্যাম্বুলেন্স এবং এমার্জেন্সি পরিষেবা। মুক্তা নার্সিং হোম, মেডিকেল মোড়, শারদাপল্লী, শিব মন্দির। ফোন 9733535535 এবং 7001058210। অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য লগ ইন করুন www.muktahealthcare.com। আপনিও কি আমার মতো ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন? থাকা সময়ে আপনিও কি ছোটেন পাহাড়, জঙ্গল অথবা নতুন ঠিকানায়? তাহলে আমি থাকছি আপনাদের সাথে। উইকেন্ড ট্রিপ উইথ দীপ্তি অনুষ্ঠানটি দেখুন প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার সন্ধে 7:30টায়, পুনঃপ্রচার বৃহস্পতিবার রাত 10:30টায় শুধুমাত্র সিসিএন সংবাদে এবং রবিবার রাত 10টায় সিসিএন বিনোদন চ্যানেলে। উইকেন্ড ট্রিপ উইথ দীপ্তি অনুষ্ঠানটি নিবেদক মায়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার। যে কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষা এখন নাগালের মধ্যে। শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ায় আইএস সার্টিফাইড মায়া ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এমআরআই শুরু মাত্র 5,000 টাকায়, সিটি স্ক্যান শুরু 2,000 টাকা থেকে। শুধু তাই নয়, রক্তের যাবতীয় পরীক্ষা ও টিএমটি, পিএফটি, হল্টার, ইকোকার্ডিওলজি, এনসিভি, ইএনজি, বিইআরএ, ডিজিটাল এক্স-রে, মেমোগ্রাফি, পিএসজি, 24 ঘন্টা বিপি মনিটরিং সহ যে কোনো পরীক্ষার সুবিধে রয়েছে। মায়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি। একটা ব্রেকের পর ফিরলাম ডক্টর প্রিন্স ফারিক নিউবর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিকের সৌজন্যে। দেখছেন অনুষ্ঠান ডক্টর অনলাইন এবং আজ রয়েছেন ডক্টর পীযূষ কুমার পাতওয়ারি, কনসালটেন্ট ইউরো সার্জন, এন্ড্রো ইউরোলজিস্ট, ইউরো অনকোলজিস্ট অ্যান্ড অ্যান্ড্রোলজিস্ট। আলোচনায় আজ কিডনি এবং আমরা ইউটিআইয়ের সমস্যা যেরকম তুলব, প্রোস্টেট নিয়েও আলোচনা থাকবে। সরাসরি আমাদের সাথে ফোন লাইনে কথা বলতে হলে 0353246194 এই নাম্বারে কথা বলতে পারেন। এছাড়াও সিসিএন বিনোদনের ফেসবুক পেজে এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনারা, সেখানে গিয়ে কিন্তু আপনার প্রশ্ন আমাদেরকে ওয়ালে পোস্ট করতে পারেন। ফেসবুক ওয়ালে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের সাথে ডক্টর পীযূষের সাথে আপনাদের সে প্রশ্নের উত্তর কিন্তু সরাসরি আপনারা পেয়ে যাবেন। अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के हिसाब से आप उसको बताएं। किडनी में अगर स्टोन हो जाता है तो हमें, अगर छोटा स्टोन है, अगर मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दर्द नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर से छोटा स्टोन है और किडनी में कोई सूजन नहीं कर रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। अच्छा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो पानी के साथ यूरिन में वो फ्लश होकर निकल जाते हैं। अगर वो छोटे होते हैं तो फ्लश होकर निकलने का परसेंटेज बहुत हाई होता है, पर जैसे जैसे उनका साइज़ बड़ा होता जाता है तब तक उनके परसेंटेज कम हो जाता है। अगर वो किडनी में प्रॉब्लम कर रहे हैं, सूजन कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, या फिर साइज़ बड़ा हो गया है जिससे कारण से पेन हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, तब हमको उसको ऑपरेशन की तरफ देखना पड़ता है। और अगर छोटा रहता है तो हम लोग बाहर से शॉक देके भी उस स्टोन को तोड़ सकते हैं, जिसको ESWL कहते हैं। और अगर स्टोन थोड़ा सा बड़ा है अगर, तो उसके लिए हम लोग 1 to 2 सेंटीमीटर के अंदर अगर होता है तो हम लोग RIRS बोल के एक पद्धति होती है जिसके थ्रू हम लोग उस स्टोन को तोड़ सकते हैं। और अगर रुकेंगे, एक फोन है। नमस्कार, কে আছেন? ডাক্তারবাবু নমস্কার। হ্যাঁ বলুন। নমস্কার। আমি নমস্কার। ফালাকাটা থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ, বলছিলাম যে আমার 3 বছর আগে একবার স্টোন হয়েছিল। আচ্ছা। তো তখন আমি ডাক্তার দেখানোর পরে আমার কিছু ওষুধ দিয়েছিল, দিয়ে এখন তো স্টোনটা বেরোয়নি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি আবার কি আমাকে কিছু করতে হবে? এখন ব্যথা হয়নি 3 বছর থেকে। ব্যথা হয়নি? না, তখন ব্যথা হয়েছিল, অসম্ভব ব্যথা হয়েছিল। আমি হসপিটালে ভর্তি ছিলাম। তারপরে 1-1.5 বছর পর একবার ব্যথা হয়েছিল 2-3 দিনের জন্য, তারপরে আর হয়নি এখন আর। क्या बात है? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो स्टोन कहाँ पे था, उसका कुछ आपको याद है कि वो स्टोन कहाँ पे था, कितना बड़ा स्टोन था? বলেছিল তো ওই পাইপের মধ্যে আছে, পেচ্ছাপের। उसका साइज कितना था?
সাইজটা বলতে পারবেন? साइज সাইজটা তো মনে নেই, 5 mm বা এরকম কিছু ছিল, 4.5 mm। जैसे आप बोल रहे हैं वो किडनी के पाइप में था जिसको यूरेटर कहते हैं। तो यूरेटर में कभी कभी छोटे स्टोन आके ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कारण से यूरिन का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। इससे कारण से किडनी में यूरिन जमा होने लगता है, स्ट्रेचिंग होता है, इससे कारण से पेन होता है। साथ में क्या होता है कि बॉडी उस स्टोन को पुश करने का कोशिश करता है अपने आप, ताकि वो स्टोन निकले। बॉडी का एक तरीका होता है, कोई भी बीमारी होती है तो उसको पहले अपने तरीके से वो हैंडल करना चाहता है। इस कारण से आपको पेन हुआ था। तो छोटा स्टोन था, और ऐसे स्टोन यूजुअली दवाइयों से निकल जाते हैं। 60 to 70% केसेस में ये दवाइयों के माध्यम से निकल जाता है। जैसे आपने बोला कि आप उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उस समय जो दवाइयाँ दी गई होगी तो उसके माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि 3 साल से आपको दर्द नहीं हुआ, तो उसका मतलब यही है कि वो पत्थर जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने आपको दवाइयाँ दी थी उससे वो निकल गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जो स्टोन निकल जाता है इसका कोई पता नहीं चलता क्या? अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है? देखिए बहुत बार हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं हाथ में स्टोन लेके। अच्छा। कभी कभी उनको फील हो जाता है कि हमारे यूरिन से कुछ निकला है, कभी वो छिटक के गिरता है, तब वो उठा के ले आते हैं, तब वो एक कंफर्मेशन हो गया कि हाँ स्टोन निकल गया है। अच्छा। कभी कभी होता है कि हम देखते हैं कि हमने दवाइयाँ दी, 10 दिन के बाद पेशेंट बोलते हैं कि नहीं हमारा तो पहले पेन था, अभी अचानक से पेन पूरा खत्म हो गया, हम एकदम हेल्दी हैं। तो कभी कभी हम ऐसे केस में बोलते हैं कि एक अल्ट्रासाउंड करके कंफर्मेशन कर लेना चाहिए कि हाँ स्टोन निकल गया है, ताकि आपको भी सोचने में नहीं रहेगा कि मेरा स्टोन निकला है कि नहीं निकला है। आप भी पेशेंट होने के कारण आप स्ट्रेस लेंगे कि मेरा स्टोन था, क्या हुआ। तो बेहतर रहता है एक अल्ट्रासाउंड कर ले, और या अगर आपको फील हुआ है कि कुछ पास हुआ है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि वो स्टोन था जो पास हो गया है और अब पेन नहीं हो रहा है। ऐसे रोगी को किस बात पर ध्यान देना चाहिए ट्रीटमेंट के बाद? ट्रीटमेंट के बाद यही है कि कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 2 लीटर अराउंड 8 से 10 ग्लास पानी प्रत्येक दिन पिए, और जैसे कुछ खाने की पदार्थों से हमें कम खाना चाहिए, जैसे ऑक्सलेट रिच फूड जैसे चॉकलेट हो गया, या नॉन वेजिटेरियन फूड हो गए, हाई प्रोटीन डाइट हो गया, या ऑक्सलेट रिच फूड हो गए जैसे पोटैटो हो गया, या फिर पालक हो गया, या बीट हो गया, या ये सब खा सकते हैं? नट्स, ये सब कम खाने चाहिए। अच्छा। ये सब कम खाने से ऑक्सलेट कम रहे डाइटरी कम जाएगा, तो इससे स्टोन फॉर्मेशन होने के चांस कम हो जाते हैं। अच्छा। फिर विटामिन सी और विटामिन डी के जो हम लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं वो भी अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो भी एक स्टोन बनने का एक कारण हो सकता है। अच्छा। तो उसको हमको चेक करना है। और भी हम कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जैसे ट्राइएमट्रीन हो गया, या कोई और दवाइयाँ जो जिससे स्टोन बनता है, अगर डॉक्टरी एडवाइस में ले रहे हैं तब तो ठीक है, अगर हम लोग ऐसे ले रहे हैं तो फिर उसको हमको स्टॉप कर देना ठीक रहता है। तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। তাহলে যখন তখন ওই ওষুধগুলো অনেকেই আমরা কিনে খাই, হঠাৎ করে যে কিনে গেলাম একটা মেডিকেল স্টোরে গেলাম, সেখানে আমরা একটা মেডিসিন কিনে নিলাম কারণ আমার সমস্যা হচ্ছে, আমি ভিটামিন খাবো, ভিটামিন সি যথেচ্ছভাবে ভিটামিন সি খেলাম, ভিটামিন ডি খেলাম, কিডনির একেবারেই কিন্তু 12টা বাজবে। সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো রকম ভিটামিন বা কোনো রকম প্রোটিন পাউডার বা কোনো রকম কোনো কিছু নেওয়া উচিত না। হয়তো আপনাকে কিছু সময়ের জন্য কিছুটা সময়ে আপনাকে সেটি অনেকটা সাহায্য করবে, আপনি ভাবলেন আরে বাবা সেই ফল হচ্ছে, রেজাল্টটা খুব ভালো পাচ্ছি, কিন্তু আখেরে দেখলেন শেষ পর্যন্ত গিয়ে একটা বয়সের পর দেখবেন তখন আপনাকে সিগন্যাল দেবে আপনার শরীর, আপনি যে এই মেডিসিনগুলো খেয়েছেন তার একটা কিন্তু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে, সেগুলো সবসময় চিন্তা করবেন, কারণ একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। ডাক্তার পীযূষ কুমার পাটোয়ারি এখন শহরে রয়েছেন আমাদের শিলিগুড়িতে, নিয়মিত সেখানে কিন্তু চিকিৎসা করছেন মিত্রস ক্লিনিক, হাকিমপাড়া শিলিগুড়ি, ডাক্তার নায়ক নার্সিং হোম, সেবক রোড শিলিগুড়ি, এবং প্রতীক মেডিকেল অপোজিট অফ হাওড়া পেট্রোল পাম্প শিলিগুড়ি। সেখানে নিয়মিত কিন্তু ওনার ওপিডি হয়। যোগাযোগ করবেন, যেটিতে হেল্পলাইন নাম্বার একবার বলি 9800030690, 9800030690, এই নাম্বারে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে একবার যোগাযোগ করতে হবে। এই তো গেল আমাদের কিডনির সমস্যা। কিডনিকে যত্ন রাখতে হলে কী হবে? ছোটে বাচ্চা के अंदर किडनी का समस्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, वो कैसे होता है? छोटे बच्चों में भी किडनी की समस्याएं कॉमन है, जिसमें किडनी का पत्थर भी हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जिसमें हमें आगे की जांच करके देखना पड़ता है कि ये पत्थर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अच्छा। और हम उसको कैसे रोक सकते हैं।
तो अगर हमें पता चल जाए कि ये पत्थर किस तरह का है तो हम उसे कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन एडवाइस कर सकते हैं कि डाइट में क्या आपको कम खाना है और क्या ज़्यादा खाने से आपके पत्थर रुक सकते हैं। जैसे बच्चों में होना या किसी की एक किडनी है तो वैसे में, या फिर दोनों किडनी में अगर पत्थर हो रहा है, या फिर आपको शुगर है, या फिर इन्फेक्शन के साथ में पत्थर है, या फिर आपकी किडनी के फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में हम लोग एडवाइस करते हैं कि मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन करना चाहिए। अच्छा। तो अगर पहली बार अगर हुआ है, अगर आप लो रिस्क में आते हैं और मतलब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप लो रिस्क में आते हैं, तो फिर हम कम टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि यूरिया क्रिएटिनिन हो गया, और यूरिन में किस तरह का क्रिस्टल आ रहा है, यूरिन का पीएच क्या है, क्योंकि यूजुअली स्टोन जो होते हैं वो एसिडिक पीएच में बनते हैं, बेसिक पीएच में भी बनते हैं पर ज़्यादातर स्टोन एसिडिक पीएच में बनते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे इंटैक्ट पैराथॉर्मोन या फिर यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड, कैल्शियम और KFT, ये सारे टेस्ट करके हमें पता चलता है कि स्टोन का प्रकार किस तरह का है। और जिन केसेस में से मरीज हमारे पास स्टोन लेके आ गया या हमने ऑपरेशन किया तो हम वो स्टोन को एनालिसिस के लिए भेज देते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि स्टोन किस प्रकार का है, तो हम उस हिसाब से मरीज को एडवाइस देते हैं ताकि फ्यूचर में उसके लिए स्टोन बनने की संभावना कम हो जाए और उसको आगे अपने जीवन व्यतीत करने में खास कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। সুতরাং এই বিষয়গুলোকে খেয়াল রাখতে হবে। তো সাধারণভাবে কিডনি যে আমার যদি কিডনি কোনো সমস্যা না থাকে, কিডনির একটা যত্নের প্রয়োজন, সেটা একজন ইউরোলজিস্ট ভালো পরামর্শ দিতে পারেন। তাই ডাক্তার পীযূষ এর কাছে আমরা জেনে নিতে চাই যে কিডনির স্বাস্থ্য যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে। किडनी स्वास्थ्य को भालो रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बेसिक चीज़ है जिसके लिए कुछ पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, वो है पानी, जिसके लिए हम लोग तब से हमने 3-4 बार चर्चा कर ली। पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं कि अपने नॉर्मल रूटीन में पानी अगर हम लोग ठीक से पीते हैं तो किडनी में स्टोन होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जो हमने पहले भी बात किया कि कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम कम खाने से किडनी में स्टोन होने की संभावना कम हो जाती है। साथ में कुछ मरीज में यूजुअली कुछ एनाटॉमिकल प्रॉब्लम होती है जो जन्म से होती है या बाद में ग्रोइंग अप के समय में होती है, तो हमें अगर उसका पता करना पड़ता है कि अगर स्टोन हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड करके हमने देखा था, उसमें अगर हमें कुछ प्रॉब्लम पता चली तो उस स्टोन के साथ में उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ स्टोन का ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया, हमें उस प्रॉब्लम का अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर से स्टोन बनेगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है और ताकि आगे ये वापस से स्टोन की समस्या होने की संभावना को कम किया जा सके। কিডনি যেরকম আমাদের শরীরের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তাকে যত্ন নিতে হবে, ভুল করলে চলবে না। সাধারণভাবে জলটা নিয়মিত খেতে হবে, যেটি ডাক্তার পীযূষ বললেন, যেটা পরিমিত জল যেই পান করুন না কেন সেটি একেবারেই স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া চাই। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে সেই জলটা আপনি কতটা খাবেন, একজন চিকিৎসককে তার কাছে গিয়ে সেটাও জেনে নিতে পারেন, তার কাছে স্ক্রিনিং করাতে পারেন, কিডনি স্বাস্থ্য নিয়ে স্ক্রিনিং করাতে পারেন। তো উনি বললেন যে স্ক্রিনিংয়ের জন্য কোনো বিশেষ এমন কিছু পরীক্ষা নেই, কয়েকটি পরীক্ষা রয়েছে, সেগুলো করিয়ে নিন, কিডনি একেবারেই সুস্থ থাকবে। এই তো গেল কিডনির কথা। এবার প্রোস্টেট নিয়ে আসি। প্রোস্টেটের চ্যাপ্টারটা অনেক, যদিও খুব কম সময় রয়েছে, আমরা প্রোস্টেট নিয়ে আলোচনা করব। সবার আগে যেটি জিজ্ঞেস করবো, প্রোস্টেট क्या है? प्रोस्टेट पुरुषों में एक अंग है, एक अखरोट जैसा जितना छोटा एक अंग होता है जो यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब थैली के मुंह पे बैठा होता है। उम्र के साथ में ये धीरे धीरे ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट होता है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है, जिससे कारण से पेशाब थैली के जो मुंह है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है, जिससे कारण से पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका साइज बढ़ता है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वयस्क लोगों में इसकी समस्या ज़्यादा होती है। तो उसके कारण से ये यूरिन की प्रॉब्लम जो आती है वो होती है। पर इसका कुछ काम भी है हमारे शरीर में, जैसे हम लोग का जो सीमेन निकलता है उसको लिक्विफाई करने में ये मदद करता है, इसलिए ये पुरुषों में ज़रूरी है। बट ओल्ड एज में जाके हाँ, ये कभी कभी ये समस्या उत्पन्न कर देता है। তাহলে প্রোস্টেটটা জেনে নিলাম যে একেবারে ছোট্ট আখরোটের মতো একটা অংশ, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সেটি পুরুষদের বৃদ্ধি পেতে থাকে, সেটি 40 বছরের পর, সাধারণভাবে 40 ইয়ার্সের পর কিন্তু সেটি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।
সুতরাং এইটারও কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত। এই সিমটমগুলি যিনি বললেন ডাক্তার পীযূষ, সেগুলো যদি আপনার ভিতর থেকে থাকে অবিলম্বে কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ, কারণ প্রোস্টেট থেকে অনেক ধরনের জটিল জটিল সমস্যা তৈরি হয়। बीपीएच के बारे में बताइए, बीपीएच क्या है? बीपीएच होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसमें प्रोस्टेट के जो सेल्स होते हैं ये बढ़ने लगते हैं नंबर में भी और साइज में भी। तो इसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टेट का साइज जो है वो हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, जो नॉर्मल 15 से 20 ग्राम होना चाहिए वो बढ़ने लगता है। कभी हम लोग देखते हैं 30 ग्राम है, 40 ग्राम है, 50 ग्राम है, ऊपर में 100-120 ग्राम्स भी हो सकता है। तो ये जो साइज बढ़ता है तो ये चारों तरफ बढ़ता है। तो चारों तरफ बढ़ने के कारण क्या है कि ये उसका कुछ भाग जो है वो मूत्र नली के रास्ते में आता है, यूरेथ्रा में आता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में। इससे कारण अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे कारण से हमें प्रोस्टेट के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, या पेशाब में जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं वो क्वालिटी कम, यूरिन क्वालिटी जो है वो कम होता है। सिम्टम्स होते हैं जैसे रात में, जैसे हमारे एक श्रोता ने बोला था कि बार बार रात में पेशाब उठना, इसके कारण नींद बाधित होना, या फिर पेशाब रुक रुक के होना, या पेशाब लगने के बाद में पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाना, और दिन में भी बार बार घंटे घंटे पेशाब जाना, या फिर पेशाब करने का ऐसा लगना कि अभी थोड़ा और पेशाब बाकी है, तो मतलब पेशाब क्लियर नहीं होना, या पेशाब करते समय हमें चाप देना पड़े। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट के, जिसके लिए हमको ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके किसके वजह से होता है ये प्रोस्टेटिक सिम्टम्स है। ये इसलिए होता है कि इसका मतलब क्या प्रोस्टेट खराब है? नहीं, प्रोस्टेट थोड़ा बड़ा हो गया है, जो समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसमें एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो देखते हैं हमारा प्रोस्टेट साइज कितना है। अच्छा। मतलब ऐसा है कि 100 ग्राम का प्रोस्टेट भी अगर होगा, हो सकता है वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा हो, और 25 ग्राम का प्रोस्टेट भी प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल। तो ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है। तो इसको हमको समझना है, सिर्फ प्रोस्टेट बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम है कि नहीं है उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे यूरोफ्लोमेट्री है। इसमें हमें पता चलता है कि फ्लो कितना है। अगर एज के अनुसार से अगर उसका फ्लो ठीक है तो मतलब ये है कि हम मतलब प्रोस्टेट के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो हमको उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या लक्षण है इसका? जैसे दूसरी बीमारियां हो सकती है, जैसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज हुआ, या फिर अंडर एक्टिव ब्लैडर हुआ, या फिर कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण हुआ, या कोई भी नर्वस डिजीजेस के कारण हुआ, या कभी कभी डायबिटीज़ के मरीजों में भी ऐसा देखा जाता है। तो ये सब चीज़ों का कारण हमें पता करना है। सिर्फ ये बोल देना कि प्रोस्टेट बड़ा है उसके कारण होता है, ऐसा नहीं होता। हमें उसके कारण का पता लगाना पड़ता है, और फिर उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। একেবারে এটা একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর কিন্তু সাধারণভাবে পুরুষ মানুষদের এটি একটি সমস্যা, এবং প্রোস্টেটের সমস্যা নিয়ে 40-এর পর থেকে, যেহেতু 40-এর পর থেকে বয়স 40-এর পরে প্রোস্টেটের বৃদ্ধি হতে থাকে, আপনাদের একবার উচিত যে সাধারণভাবে স্ক্রিনিংটা করে নেওয়া উচিত। রাতে বারবার উঠে আপনি হয়তো ইউরিনের জন্য দৌড়াচ্ছেন আপনার ওয়াশরুমে, সেখানে গিয়েও আপনি দেখছেন যে বারবার আপনার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে, তাতে শারীরিক একটা সমস্যা আসে। অতিরিক্ত জলপানের জন্য সেটিও হতে পারে, কিন্তু জলপানের যেরকম নিয়ম আছে চিকিৎসকরা বলেন সকালের দিকে অধিক পরিমাণ আপনি যতটা পারেন জল খান, রাতের দিকে একেবারেই কমাতে হবে, বিকেল 5টার পর আপনি একেবারে কমাতে থাকুন। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাগুলো হয় না, সেটি একটা আলাদা রকম সমস্যা, এটি চিকিৎসক নির্ণয় করবেন। ডাক্তার পীযূষ কুমার পাটোয়ারি এই কথাটিই বলছেন যে প্রোস্টেটের সমস্যায় এই সমস্যাগুলোকে এড়াতে হলে আপনার প্রোস্টেট এর স্বাস্থ্য কেমন আছে সেটিও একটু দেখতে হবে। डायग्नोसिस कैसे करते हैं सर? यूजुअली हमारे पास जब ओपीडी में मरीज आता है प्रोस्टेटिक सिम्टम लेके, हम उसको कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। उसमें अल्ट्रासाउंड में हमें देखना है कि पोस्ट वॉइड रेसिडुअल यूरिन देखना होता है कि यूरिन करने के बाद पेशाब थैली में कितना पेशाब बाकी रह जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। क्योंकि अगर ज़्यादा रहता है तो क्या, जब तक इसका निजात नहीं मिलेगा तो पेशेंट को कभी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ब्लैडर में कितना यूरिन हर बार यूरिन करने के बाद रह जाता है, ये हमें नापना जरूरी है। सेकेंड, हमें यूरोफ्लोमेट्री बोल के एक टेस्ट होता है, इसमें हमें फ्लो का पता चलता है कि एक्चुअल में ये प्रोस्टेट के कारण प्रॉब्लम हो रही है तो कितना फ्लो कम हो रहा है, ताकि हम जो दवाइयों से या फिर जो मैनेजमेंट करेंगे तो इसमें कितने का फ़ायदा होता है।
उसके अलावा जो हिस्ट्री में हम लोग जो जैसे हमने बात करी कि स्कोरिंग करते हैं, IPSS स्कोरिंग कहते हैं उसको, तो उसको हमको हर OPD विजिट में हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि अभी पहले से कैसा है। अगर इम्प्रूवमेंट 4 स्कोर या उससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब है कि पेशेंट कंफर्टेबल है, ठीक है, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो काम कर रहा है, या फिर हमें जैसे डोज बढ़ाना है या कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट करने हैं या ऑपरेटिव मैनेजमेंट करना है, उस हिसाब से हमको देखना पड़ता है। একেবারে সুতরাং এই ডায়াগনোসিসটা এইভাবেই হয়। ট্রিটমেন্টের বিষয়টা একটু জেনে নিই, ট্রিটমেন্ট কি করে করতে হবে এবং কতদিন এই ট্রিটমেন্ট চলবে বা আদপেই এই ট্রিটমেন্টটা সারা জীবন চলবে কিনা প্রোস্টেটের জন্য, এটি একটু জেনে নিই। ट्रीटमेंट जो होता है यूजुअली इसमें अगर प्रोस्टेट छोटा साइज़ का है तो हम लोग सिर्फ अल्फा ब्लॉकर देते हैं, और प्रोस्टेट अगर 30 ग्राम से ऊपर है या फिर सीरम PSA ज़्यादा है, या फिर हम लोग DRE करते हैं उसमें ग्रेड 2 प्रोस्टेट से अगर ज़्यादा है तो फिर हम लोग इसमें साथ में 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर भी ऐड करते हैं। तो इनका जो फुल इफेक्ट आता है यूजुअली 6 to 9 मंथ्स में इनका इफेक्ट आता है, फुल इफेक्ट आता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर पेशेंट सिम्टम फ्री है, पेशेंट की कितना हैप्पीनेस है, कितना बॉदर पहले हो रहा था और वो अभी बॉदर कम हुआ है कि नहीं हुआ है, पेशेंट कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं अप टू 2 इयर्स। अगर 2 इयर्स तक भी अगर हम देखते हैं कि पेशेंट को नहीं, ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट को प्रॉब्लम रह रही है, तो हम उसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। अगर नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप कुछ दिन और मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर पेशेंट खुश है तो हम कुछ दिन और मेडिकल मैनेजमेंट कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। একেবারে তাহলে এটা বুঝে গেলেন, চিকিৎসা করতে হবে, সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ, সবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ। নিজের এই যে আমরা বলি প্রোস্টেটের সমস্যায় নিজেরা তো কোনো রকম ট্রিটমেন্ট করতেই পারবো না, কারোর কাছে কোনো শুনে কোনো মেডিসিন কোনোভাবেই নিতে যাবেন না, একমাত্র চিকিৎসক বলার পর সেটি করতে হবে। এরপরে আসি ইউটিআই ব্যাপার। ইউটিআইয়ের ব্যাপারটা আমরা অনেকেই জানি, এই যে আমাদের যেখানে ইউরিন পাস হয় সেই ইউরিনের যেই টিউবটি থাকে সেখানেও কিন্তু অনেক রকম ইনফেকশন তৈরি হয়। ইউটিআই এর কি কি সমস্যা সেটি একটু জানি। ইউটিআই কি এটি আপনাদেরকে জানাই, क्या है सर यूटीआई? यूटीआई का फुल फॉर्म हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में पूरे में कहीं भी इन्फेक्शन हो तो उसे यूटीआई कहते हैं। जैसे किडनी में हुआ तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, यूरेटर में हुआ तो यूरेट्राइटिस कहते हैं, ब्लैडर में हुआ सिस्टाइटिस कहते हैं, या फिर यूरेथ्रा में हुआ यूरेथ्राइटिस कहते हैं। ये पूरा सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें यूजुअली मरीज जो होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमें पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब करते वक्त दर्द हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है। जब बुखार आता है तो इसमें ठंड ज़्यादा लगती है, और कभी कभी जब किडनी में इन्फेक्शन होता है तो दोनों साइड लॉइन में पेन होने लगता है। तो ये इसके ये सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स हैं। कभी कभी इसमें पेशाब में खून भी आता है, पेशेंट को कभी कभी नोजिया भी फील होता है कि उल्टी जैसा भाव आता है पर उल्टी हो नहीं रही है, कभी कभी उल्टी हो भी जाती है। तो ये सारा सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जो यूटीआई की तरफ इशारा करता है, और फिर हमें उसे मैनेजमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल। यूटीआई का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? देखिए यूटीआई का डायग्नोसिस कुछ तो सिम्टमेटिक है। अगर सिम्टम पेशेंट दे रहा है तो ये खुद ही बोलता है कि यूटीआई है, पर इसके मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम कल्चर डायरेक्टेड एंटीबायोटिक्स दें। जब पेशेंट आते हैं तो कुछ हमारे रीजन के हिसाब से जो एंटीबायोटिक ससेप्टेबल बैक्टीरिया होते हैं हम उसको एंटीबायोटिक कुछ 3 दिन के लिए चलाते हैं, और फिर हम यूरिन को रूटीन और कल्चर के लिए भेजते हैं। फिर कल्चर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बैक्टीरिया है, उसमें कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा, और पेशेंट का सिम्टम 3 दिन के बाद में कैसा है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है और कल्चर में भी नो ग्रोथ नहीं है तो फिर ठीक, तो फिर उससे ज़्यादा की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कल्चर में प्रॉब्लम है, पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है, तब हम कल्चर डायरेक्टेड एंटीबायोटिक उसको एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। एंटीबायोटिकটা একেবারেই সঠিক সময়ে কিন্তু সেটি নিতে হয়। এবং ইউটিআই এর ট্রিটমেন্টের বিষয়টা একটু শুনি, ট্রিটমেন্ট के बारे में। तो ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का एक मेन रोल है, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हमको करना पड़ता है। जैसे कि पानी ज़्यादा करके पीना है, इससे क्या होता है कि यूरिन थोड़ा और पतला होता है और इन्फेक्शन जो होता है वो फ्लश होने में मदद मिलती है। इसके अलावा यूरिन को एसिड करने वाली चीज़ों को से हमें दूर रहना होता है, जैसे लेमन जूस ज़्यादा नहीं पीना है हमको, या कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं पीना है, तो इससे एसिडिक यूरिन नहीं होता है। तो यूजुअली इन्फेक्शन में एसिडिक यूरिन में इन्फेक्शन होता है, तो हम चाहते हैं कि उसको एल्कलाइनाइज करना। इससे 2 फायदे होते हैं, एक तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम होता है, दूसरा थोड़ा सिम्टम में हमें आराम मिल जाता है कि जलन कम हो जाती है। तो ये इसका मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है। टेम्परेचर आता है, बुखार आता है सिम्टम के अंदर? हाँ, टेम्परेचर आता है, और टेम्परेचर जैसे किसी मरीज को बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसमें हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें इन्फेक्शन का लेवल कैसा है। कभी कभी अगर
नॉर्मल टैबलेट से या नॉर्मल जो हम लोग एंटीबायोटिक चलाते हैं उससे बुखार कम नहीं हो रहा है, मरीज बहुत ज़्यादा असुस्त हो जा रहा है, तो फिर हम उसे भर्ती करते हैं, तब उन्हें इंजेक्शन देके एंटीबायोटिक भी चलाना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में हमें आगे का भी देखना पड़ता है कि हमने जो एंटीबायोटिक दी है वो काम नहीं कर रही है, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, तो हम आगे के टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिससे कारण से क्या है कि जो हम जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, या कोई स्टोन डिजीज है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फिर हमको उसको डायरेक्ट करके उसके तरफ भी हमको मैनेजमेंट अपना डायरेक्ट करना पड़ता है, तब उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। एक बार ठीक हो जाने के बाद बार बार घूम के आता है यूटीआई? यूटीआई जो है वो बार बार हो सकता है। यूजुअली जो फीमेल्स होती है उनके लाइफ में 50% फीमेल्स की लाइफ में कभी ना कभी यूटीआई होता है। अच्छा। और एक बार यूटीआई होने के बाद में सेकेंड यूटीआई होने का चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो यूटीआई का हमने ट्रीटमेंट किया, अगर 1 साल के अंदर 3 बार या 6 महीने में 2 बार यूटीआई होता है तो मतलब हम बोलते हैं उसको रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। उसके कारण होते हैं या तो नया कोई बैक्टीरिया आया है, कोई से इन्फेक्शन हुआ है, या फिर पुराना बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियल परसिस्टेंस जिसको कहते हैं कि वो वही रह जा रहा है। वो क्यों रहता है? जब तक कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है कि मतलब किडनी की बनावट में या उसके पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की बनावट में कोई दिक्कत है, या फिर पेशाब ठीक से नहीं हो पाता है, उसके कारण हो रहा है कि पेशाब ब्लैडर में रह जा रहा है, या फिर में भी इन्फेक्शन हो सकता है। वॉशरूम में भी इन्फेक्शन होने का एक फीमेल का होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि कॉमन सेल्स जो होते हैं वो स्किन वाले, वो रेट्रोग्रेड फीमेल्स में मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वही है। जो स्किन के फ्लोरा ही जो होते हैं, जो पेरिएनल रीजन में होते हैं, वही इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। তো তাহলে এই সমস্যাগুলোই হয় সাধারণভাবে ইউটিআই সমস্যা। যাই হোক, এই ইউটিআই সমস্যা নিয়ে যারা রয়েছেন তারা দেরি করবেন না, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ দেখবেন, জানান দেবে। ইউটিআই সমস্যাতে আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন কি হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোঝা যায় সেটি। এবং এই যে জ্বর বা ফিভার যেটি হাই টেম্পারেচার নিয়ে আসে, সেখান থেকেও কিন্তু একটা সন্দেহ করা যেতে পারে যে ইউটিআই এর সমস্যা আছে কিনা। অবশ্যই চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ডাক্তার পীযূষ কুমার পাটোয়ারিয়া ছিলেন কনসালটেন্ট ইউরোসার্জন, ইউরোলজিস্ট, ইউরো অনকোলজিস্ট অ্যান্ড অ্যান্ড্রোলজিস্ট। বিত্রস ক্লিনিক, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, ডক্টর নায়ক নার্সিং হোম, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, এবং প্রতীক মেডিকেল অপোজিট অফ হাওড়া পেট্রোল পাম্প, হিলকাট রোড, শিলিগুড়ি। নিয়মিত ওখানে ওপিডি হয়। ওনার সাথে যোগাযোগ করতে হলে যেই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করবেন অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য 9800030690, এই নাম্বারটি ব্যবহার করবেন ওনার কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য। আজকে আমাদের সময় শেষ। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে স্টুডিওতে আসার জন্য। ধন্যবাদ আপনাদের। ডক্টর প্রিন্স পারেখ নিউবর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিকের সৌজন্যে অনুষ্ঠান দেখলেন। ডক্টর প্রিন্স পারেখ নিউবর্ন অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ক্লিনিকের অ্যাড্রেস হলো বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি। প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। Dr. Prince Parikh's Newborn and Child Care Clinic presents Doctor Online. সহযোগী নিবেদক আস্থা হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ রোড, ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে, কাওয়াখালী, শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটাল। আমাদের ঠিকানা বিশাল সিনেমা হলের পেছনে, 2nd মাইল, সেবক রোড। শিলিগুড়ি হেল্পলাইন নাম্বার 9733300090। Maya Shanal Clinic and Nursing Home and Maya Diagnostics, Nojul Sharoni near Pakutala Mode, Shiliguri. New Life Fertility Center, 2nd floor, Homeland Business Center, 3rd mile, opposite Mahindra Showroom, Shebak Road, Shiliguri.